A very good morning to all of you dear students. बेटा ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ax plus b is equal to 0 where a should not be equal to 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x is equal to 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ y is equal to 3 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ y 2y plus 5 is equal to 0। these all are examples of linear equation in 1 variable। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both zeros। a और b ਜਿਹੜਾ x ਤੇ y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੋਵੇਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x plus y is equal to 5 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x minus y minus 3 is equal to 0 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x plus y minus 7 is equal to 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ let us solve a linear equation in 2 variables। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਮਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਵਿਕਟ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ? ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ x ਹੈ, ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? y ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ x plus y is equal to 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ x 0 ਹੈ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਾਵ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7 ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
उस तो बाद बेटा x जे आप 3 वैल्यू भरीए रैंडमली कोई भी वैल्यू आप भर लेंदे आ x बराबर 3 तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4 तो देयरफॉर x बराबर है 3 y बराबर है 4 भी इस समीकरण का हल है। उसी तरह की तुसी कुछ होर हल लभ सकते हो बेटा तुसी अपने आप हल लभ सकते हो। हाँ जी बहुत सारे हल तुसी लभ लए होने हैं। चलो मैं इत्थे एक एग्जाम्पल के तौर पर हल इत्थे ले लिया होया x बराबर है 5 y बराबर है 2। तो बेटे हुण असी देखते हाँ कि तुसी ये सारे हलों नूं बेटा इस तरह भी लिख सकते हो तुसी ऐ भी लिख सकते हो 0,7 इसका एक हल है। उसी तरह 3,4 इसका एक हल है। हमेशा याद रखना x का जो वैल्यू पहला लिखनी है उवें बेटा 5,2 इसका एक हल है। तो मैं तुहानूं पिछली बार दस्सिया सी कि इसी नूं टैबुलर फॉर्म दे विच भी किवें लिखना है x अते y असी लिख लेंदे हाँ। जदों x 0 है y कितना है 7, जदों x 3 है y कितना है 4, जदों x 5 है तो y कितना है 2। इज इट क्लीयर? इस तरह बेटा आपां नूं लिखना आंदा है। ते आओ आपां हुण देखिए कि इहनूं असीं ग्राफ ते बेटा किवें बनाना है। ग्राफ वास्ते मैं तुहाडे सामने तुहानूं पता है ग्राफ पेपर दे बेटे उपर अपने कोल एक एक्स एक्सिस तुसीं देख रहे हो जिहड़ी कि ये तुहाडे कोल हॉरिजोंटल लेटवी रेखा है। खड़वी रेखा नूं बेटे असीं की बोलदे हां वाई एक्सिस। ते ये तुहानूं अच्छी तरह याद है इधर असीं एक्स इधर प्लस दियां वैल्यूज इहनूं असीं ओरिजिन बोलदे हां बेटा 0 ओ नाल असीं इहनूं रिप्रेजेंट करदे हां जिथे एक्स ते वाई दोवें 0 हुंदे। ते उस तो बाद साडे कोल इधर एक्स है इधर बेटे असीं इहनूं माइनस एक्स भी बोल दिंदे हां एक्स डैश भी लिख दिंदे हां। ऊपर बेटा वाई ते नीचे की हुंदा है वाई डैश या माइनस वाई। ते उस तो बाद ग्राफ पेपर ते बेटा तुहानूं पता ही है कि असी बिल्कुल इक्वल इंटरवल से असी इहदी लेबलिंग इधर प्लस एक्स प्लस दियां वैल्यूज एक्स दियां ऊपर प्लस दियां वैल्यू वाइज दियां उसी तरह इधर बेटा वाई एक्स दियां माइनस वैल्यूज नीचे वाई दियां माइनस वैल्यूज असी इस तरह ना रिप्रेजेंट बेटा करते हाँ। ते हुण बेटे असी देखते हाँ कि असी इहनूं ग्राफ दे पेपर ते किवें आ वालियां बेटा वैल्यूज जिहड़ियां आपां कड्ढियां होईयां है किस इक्वेशन दियां x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जिहड़ा अपने कोल इक्वेशन सी ओहदा बेटे आपां टेबल बनाया सी लास्ट पेज ते मैं इत्थे टेबल ले आंदा है। हुण देखो बेटा असी ओही बिल्कुल तुहाडे सामने ग्राफ तुसी देख रहे हो थोड़ा जिहा इहनूं क्लोजर लुक दे विच तुहानूं मैं दिखाया है। ते x पहली वैल्यू आपां लैने आ जदों x 0 है ते y कितना है बेटे तुहाडे कोल 7। ये पॉइंट कित्थे बनेगा देखो जदों x 0 है x बेटा 0 ते y की है 7 y कितना है बेटे तुहाडे कोल 7 देख रहे हो तुसी पॉइंट 0,7। उस तो बाद बेटा अगला पॉइंट है x जो 3 है y कितना है बेटा 4 x 3 ते उधर y असी ले लेना बेटे 4 आ तुहाडे कोल अगला पॉइंट आ गया देख रहे हो तुसी। उस तो बाद बेटा x जो 5 है y कितना है 2 ते तुहाडे कोल पॉइंट बेटे आ गया। ते हुण तुसी देखना है ये तिन्ना पॉइंट्स नूं वैसे तो बेटा आप 2 पॉइंट्स लेके भी अपने कोल लाइन ड्रॉ हो जाती है क्योंकि आप ये पढ़िया होया है कि किसी भी जेडे 2 वक-वक बिंदुओं के विचों केवल एक ही रेखा खिंची जा सकती है पर आप 3 बिंदु इस करके लेंदे हाँ कि किसी कैलकुलेशन च मान लो अपने कोल कोई बिंदु दी कैलकुलेशन दे विच असीं एक्स वाई दे कोआर्डीनेट गलत हो गए तो तुहाडी जिहड़ी ओहदा ग्राफ भी गलत हो जाएगा। लेकिन जदों आप 3 लेंदे हाँ तो उसकी एक तरह की पड़ताल हो जाती है कि अपने जिहड़े बिंदु है वो ठीक ले गए। जेकर 3 बिंदु एक रेखा च नहीं आ रहे तो तुहानूं पता लग जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन किते रॉन्ग है तो तुसीं उहनूं रीचैक कर सकते हो अपने क्वेश्चन। तो देखो बेटा ये तीनों पॉइंट्स तुहाडे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन च ने ते असीं इहनूं इस तरह नाल तुसीं देख रहे हो रेड जिहड़ी एक लाइन है असीं इहनूं इहदे नाल दर्शा देना है लाइन ड्रॉ कर देनी है जिहड़ी 3 बिंदुओं दे विच दी निकलदी है। और एक चीज़ बेटा तुसीं इहदे एरोज जरूर लगाने इस लाइन दे ठीक है। ते एक होर बड़ी अच्छी इहदी हैबिट है कि जिस इक्वेशन दा तुसी ग्राफ ड्रॉ किया उसनूं इस दे एक बिल्कुल थोड़ा नीचे वाली साइड ते जाके उसनूं लिख भी दो। ये भी एक बेटा बहुत ही जरूरी प्रैक्टिस है। ते हुण तुसी देखो कि आपां अच्छी तरह तुसी इस ग्राफ नूं देख सकते हो। हमेशा तुसी इस तरह ही तुसी इहनूं लेबल करना है एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस नूं। उस तो बाद एक चीज़ तुहानूं मैं होर दसना चाहांगी बेटे कि जिहड़ियां तुहाडीआं इत्थे टेबल दे विच वैल्यूज है उन्हां नूं जरूर अच्छी तरह देखो। जिवें कि जिहड़ी तुहाडे कोल वड्डी तो जिवें हुण एक्स वाई दी सब तो वड्डी वैल्यू कितनी है 7 उवें एक्स दी भी बेटा चैक करो उन्ने पॉइंट्स तुहाडे कोल इत्थे जिहड़े है जरूर तुहाडे ग्राफ दे उपर
मार्क होने चाहिए ने। ते आपां एक क्वेश्चन होर लेंदे हाँ बेटा, x माइनस वाई बराबर 2 बराबर है 1 दे हल पता करो। x माइनस 2y बराबर है 1 दे हल पता आपां करदे हाँ। हुण देखो बेटे x माइनस 2y बराबर 1, सब तो पहला मैं बेटा ये x की वैल्यू 1 भर दी, चाहे ये तुहाडी मर्जी है, तुसी चाहे x की वैल्यू भर दो चाहे y की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पैंदा। x की वैल्यू जे असीं 1 भरदे हाँ बेटा तां तुसी देखो समीकरण 1 माइनस 2y बराबर है 1 माइनस 2y बराबर है 1 माइनस 1 0, यानी y की वैल्यू बेटे तुहाडे कोल 0 आ गई। तो ये तुहाडे कोल पहली जिहड़ी वैल्यू है 1 ते 0 सोल्यूशन इस समीकरण का आ गया बेटे। उस तो बाद फिर असीं समीकरण लिख के x का मुल कितना भर दिता 2, तो असीं जदों इहदे विच 2 वैल्यू भर दी बेटा तुसीं देख सकते हो 2 उधर जाके -2 हो जाता है, ये -1, तो y की वैल्यू बेटा तुहाडे कोल की आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी 1/2। तो नैक्सट तुहाडे कोल सोल्यूशन है 2,1/2। उसी तरह थर्ड पॉइंट है बेटा x माइनस 2y बराबर है 1, ये बेटा x की वैल्यू 3 भर दो तुसी, तो तुसी देख पा रहे हो सोल्यूशन ये वैल्यू बेटा 1। अपने कोल 3 पॉइंट असी फिर असी ये हल पता कर ले। हुण बेटा असी इहनू देखते हाँ कि ज्योमैट्रिकली असी इहनू किवें इहदा ग्राफ बनाना है। ध्यान नाल देखो, ये बेटा इहनू मैं टेबुलर फॉर्म दे विच लिख लिया, तुसी देख पा रहे हो 1 ते 0, 2 ते 1/2, 3 ते 1। ते हुण आपां इसनू ज्यामिति दा निरूपण देखो बेटे किवें करांगे असी। ये वैल्यूज बेटे टेबुलर जिहड़ा फॉर्म सी मैं इत्थे लिख लिया, तुहाडे सामने ग्राफ तुहानू पता है, तुहानू सबनू आंदा है लेबल करना। ते असी बेटा पहला पॉइंट इहदा की लवांगे x 1 ते y कितना है बेटा 0, x 1 है ते y कितना है 0, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। जे तुसी ध्यान नाल देखो x 1 ते y 0, उस तो बाद बेटे x 2 ते y कितना है 1/2। ये मैं थोड़ा तुहाडे लई वैसे स्पैशल 1/2 वाली वैल्यू ली कि बच्चे थोड़ा इस गल नूं घबरांदे कि कित्थे इहनूं लगाना बिंदु। x 2 बेटा आपे चले गए, y कितना है 1/2। हुण 1/2 सानूं पता है y 1 इत्थे है, ते तुहाडे कोल ग्राफ दे विच दा होर विच 10 लाइनां हुंदियां एक डब्बे दे विच, तां तुसीं ओहदे बिल्कुल विचकार जिहड़ी 5वीं लाइन है वो पॉइंट है जिहड़ा तुसीं लै लेना है। ते तीसरा पॉइंट है 3 ते 1, ये पॉइंट तो आसान ही है, 3 ते 1 आपां नूं लैना आंदा ही है। तो तुसीं देखदे पए हो बेटा कि जिहड़े तीनों पॉइंट है वो एक रेखा दे विच दी लंघदे हन, तां असीं इहनूं स्केल दे नाल बेटा लाइन है जिहड़ी इस तरह नाल असीं इहनूं ड्रॉ करांगे। ठीक है बेटा, ते तुसीं इहदे ते जिहड़ी इक्वेशन है अपने कोल इक्वेशन की सी इहदी x माइनस 2y बराबर है 1, इस ग्राफ दे उपर आपां जरूर लिखांगे साइड ते x माइनस 2y बराबर 1 दा ये जिहड़ा है ग्राफ असीं ड्रॉ कीता। वैसे तो कोशिश करो कि जो तुसी सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो जिहड़ा वटे वाला अवॉइड कर सकते हैं असी, क्योंकि वटे वालियां दे विच की हुंदा बेटा 1/2 या इस तरह दी वैल्यूज तो आपां लगा लैंदे हैं, पर कई बारी बिल्कुल ही 2/7 या इस तरह दी जो वैल्यू तो थोड़ा उन्होंने मार्क करना औखा हुंदा है, लोकेट करना पॉइंट। इसलिए कोशिश करो कि असी वो वैल्यूज असी बदल भी सकते हैं ना, वो पर्टिकुलर वैल्यू छड्ड के तुसी अगली वैल्यू लैके पुट करके देख सकते हो। हुण बेटे असी एक होर बड़ा असी इंटरस्टिंग क्वेश्चन करते हाँ। आओ असी x बराबर है 0 का ग्राफ खिंचीए। हुण तुसी कहोगे भी ये इक्वेशन की हुई कि x बराबर है 0 इक्वेशन है, तो बच्चों ध्यान नाल देखो अपने कोल इक्वेशन x बराबर है 0 का ग्राफ जो असी खिंचना तो असी पहला इसनू जे तो बेटे इनू सिंपल असी x बराबर है 0, ये किहड़ी इक्वेशन है जिन्हों असी इस तरह ही पढ़ते हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल। तो जेदा सिंपल आप सोचिए तो यदि बेटा नंबर लाइन ते ग्राफ बड़ा ईजीली की बन जाता है, इत्थे 0 1 2 इस तरह ही है ना बेटे अपने को नंबर लाइन। तो आ x बराबर है 0 पे है, तो यदा रिप्रेजेंटेशन होगी x बराबर है 0। पर जदों मैं इसनू x बराबर है 0 नू बेटे मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स कन्वर्ट कर दी। किवें करांगी, इहदे विच मेरे पास y नहीं है तो y नू आपां की लिख लांगे 0y, ये आपां पिछली बार सीखिया भी सी। ते मेरे को कांस्टेंट टर्म अपने को जर्नल फॉर्म सी ना बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म सी, ते इहनूं आपां जर्नल फॉर्म दे विच ये अपने को बन गया। ठीक है, ते हुण तुहाडे कोल काहदे च कन्वर्ट होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स, यानी x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। हुण बेटे देखो
किवें असीं इहदी सोल्यूशन किवें फाइंड आउट करने हैं, बड़ा इंटरस्टिंग है और बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट असीं इहदे नाल ਲੱਭ सकांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे y ਦੀ वैल्यू पुट करी चलो ਤੇ x ਦੀਆਂ वैल्यूज देखो की आ रही हैं। हाँ जी बेटा y पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, y 0 पुट किया, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बेटे कितनी आ जानी है 0, बिकॉज x प्लस 0 इज x, ठीक है। यानी जदों असी y इत्थे बेटा जदों असी y 0 पुट किया x कितना आया 0। हुण बेटा मैं फिर y की वैल्यू 1 पुट कर दिनी आ, पुट y इज इक्वल टू 1, देखो बेटा की आएगा x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, अगेन दिस इज 0, x इज इक्वल टू 0। जदों आपां y 1 पुट किया x फिर 0, तो तुसी देख रहे हो कि आपां y की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे x ने कितना आना है 0। तो हुण आपां बेटे जे इहदा ग्राफ ड्रॉ करिए तो देखो आपां इहदा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पॉइंट आपां देखते हैं 0 0 0 1 ते 0 2 0 1 0 0 0 1 ते 0 2 आ पॉइंट सी बेटा अपने कोल। इत्थे ग्राफ ड्रॉ करो 0 0 बेटा पॉइंट आपां नूं पता है ओरिजिन, 0 1 x 0 y 1 x 0 y 2। हुण तुसी देखो जे तुसी ये लाइन मिलाने हो बेटे तो एक कित्थे मिल रही है, जिहड़ी आपां तिन्ना पॉइंट्स नूं मिलाण वाली जिहड़ी लाइन है वो की बन रहा है, तुसी देखोगे y एक्सिस ही बन रहा है। तो आपां की देखते हाँ कि जदों तुहाडे कोल जिहड़ी ये समीकरण है x बराबर 0 दा ग्राफ की है y एक्सिस, तो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे। और जदों तुसी NTSC या इस तरह कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स देने उहदे च इहो जिहे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि x बराबर 0 दा ग्राफ की होएगा y एक्सिस, ठीक है। उसी तरह जे हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन पूछा कि y बराबर है 0 दा ग्राफ की होएगा, y बराबर है 0 दा ग्राफ की होएगा बेटे x एक्सिस। तो ये दो चीज़ां तुहानूं हुण याद हो गई। एंड क्योंकि मैं तुहाडे लई छोटे छोटे क्वेश्चनस भी लैके आई आप वो भी करांगे। हुण बेटे अपने कोल एक होर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपां नूं आ जांदा है कि बिंदु 2,14 विचों हो के जाण वालियां दो रेखावां दे समीकरण लिखो, इस तरह दियां होर किन्नियां रेखावां हो सकदियां हन अते क्यों। देखो बेटे क्वेश्चन हालांकि आपां नूं देखण च लगदा भी बड़ा ये एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है या किवें आपां करांगे। इस तो पहला क्वेश्चन करन तो पहला मैं तुहानूं एक छोटी जी गल होर इत्थे दसना चाहती सी कि जदों भी आपां देखो आपां कोई भी ग्राफ आपां ड्रॉ करदे, जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां ये ग्राफ ड्रॉ कीता सी बेटा, आपां किस समीकरण दा कीता सी x माइनस 2y बराबर है 1। तो बेटा की है कि इस लाइन दे उपर तुसीं मैनूं दस सकदे हो किन्ने पॉइंट्स है, इस किसी भी रेखा दे उपर किन्ने बिंदु हुंदे हन, आपां नूं पता है अनगिनत बिंदु हुंदे हन। तो बेटा इस रेखा दे उपर जिन्ने भी बिंदु हन वो ए वाली इक्वेशन केड़ी इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 1 दे की हन सोल्यूशन हन, ठीक है बेटे, इस दे की हन सोल्यूशन हन। ते उसे तरह आप दोनों गल्लां कह सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 1 दे जिन्ने भी सोल्यूशन है वो इस रेखा ते स्थित हैं। ते दूजे पासे आप की कह सकते हैं कि इस रेखा ते जिन्ने भी बिंदु स्थित हैं वो समीकरण x माइनस 2y बराबर 1 दे हल हैं। इसे गल नूं लैके बेटे मैं तुहाडे कोल ये क्वेश्चन कराना चाहती सोल्यूशन बनेगा। हुण बेटे आपां एक आपां प्रैक्टिकल लैने आ अपने रोजाना लाइफ दे विच इक्वेशनस देखो बेटा किवें काम आंदियां हन। एक नगर विच एक टैक्सी का किराया हेठां लिखिया है, हेठ लिखे तरीके नाल लगदा है। पहले किलोमीटर का जिहड़ा किराया बेटे वो कितना लगदा है 8 रुपए, अते उस तो बाद दी जिन्नी भी दूरी तय करदा है वो प्रति किलोमीटर की दूरी का किराया 5 रुपए है। जेकर तय की गई दूरी x किलोमीटर अते कुल किराया y रुपए होवे तां इस ਲਈ ਤੁਸੀਂ बेटा एक रेखी समीकरण है जिहड़ी वो तुसी लिखनी है। आपां एक रेखी समीकरण बनानी है, फिर इसका आलेख भी खिंचना है। देखो बेटे किवें असीं इहनूं हल करांगे। सब तो पहला देखो उहने जिहड़ा टोटल डिस्टेंस कितना कवर कीता बेटे, टोटल दूरी या टोटल डिस्टेंस कितना कवर कीता है x किलोमीटर। देख रहे हो तुसी। हुण ये x किलोमीटर दे विच पहले किलोमीटर का किराया दसो कितना होएगा। इस x किलोमीटर दे विच जिहड़े पहले 1 किलोमीटर का किराया
कितना होएगा बेटा तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच ध्यान नाल देखो 8 रुपए है ते बाकी कितनी रह गई दूरी। फिर बाकी दूरी बेटा साडे कोल टोटल x किलोमीटर सी दूरी, बाकी रह गई x - 1 किलोमीटर दूरी। ठीक है ना। ते हुण बाकी किराया कितना रह गया, जिहड़ी बाकी दूरी है बेटे उहनूं काहदे नाल गुना करांगे असीं 5 नाल, यानी 5x - 5 इन्ना किराया जिहड़ा हैगा उहदा होर लगना है। ते हुण उहने आपां नूं इह भी कहा कि कुल किराया उहने कितना दित्ता 22 रुपए। ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ 8 + 5x - 5 = y। समझ आ गया ना कि आ दो किराए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ y। ਇਹ ਤੁਸੀਂ बेटा ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 8 - 5 बेटा कितना हो गया 3 + 5x = y। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टैंडर्ड फॉर्म च लिखांगे बेटा ਤਾਂ 5x - y + 3 = 0। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲੇਖ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ -3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ x = 0 ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 × 0 - y = -3, यानी y = 3। x जे 0 है तो y कितना है 3। ठीक है। उस तरह बेटे आप ਇਹਦੇ ਲਈ बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ठीक है। फिर ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ x 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5x - y = -3। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 - y = -3 - y = -3 - कितना आ जाएगा बेटा y = 8। ठीक है। तो अपने को ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 8 ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, give a geometrical representation of y = 3 as an equation in one variable and in two variables। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੀਕਰਨ y = 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਫਿਰ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ y = 3 in one ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ in one variable ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ y = 3 ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y = 3 ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0x, ਕਿਉਂਕਿ x ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 0x + y = 3 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ x = 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 0 + y = 3, ਇਟ ਮੀਨਸ y = 3। ਜਦੋਂ x 0 ਹੈ ਉਦੋਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ x 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ 3 ਆਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਡਰਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 0 1 2 3 ਇੱਧਰ 1 2 3
उवें बेटे नीचे अपने कोल -1 -2 ते -3 इधर भी बेटे इस तरह ही अपने कोल माइनस आपां पॉइंट्स 0 ते 3 x जो 0 है बेटा ते y कितना है 3 ठीक है। उसी तरह जो x 1 है जो x 1 है उदों भी y कितना है बेटा 3 जो x 2 है उदों भी y कितना है बेटा 3 तो तुसी देखो ये जिहड़ी तुहाडे कोल ध्यान नाल देखो ये जिहड़ा ग्राफ है तुहाडे कोल किहड़ी समीकरण दा बनया है y = 3 तो y = 3 दा जिहड़ा बेटा ग्राफ बनया वो किहदे पैरेलल बनया है x एक्सिस दे। ये गल बेटा बड़ी तुहानूं मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट दस्सण जा रही हां कि जदों अपने कोल हुण ध्यान नाल सुनना है जदों भी अपने कोल कोई इक्वेशन है y = 3 सपोज आप इहदी गल करदे जदों असीं इहनूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कन्वर्ट कीता तां तुहाडे कोल किहड़ा कोएफिशिएंट 0 सी x कोएफिशिएंट सी। तां असीं देखना है जिहड़ा कोएफिशिएंट 0 हो जांदा है जिहड़ा वेरिएबल दा कोएफिशिएंट 0 है ओहदे पैरेलल तुहाडा बनेगा ग्राफ। हुण तुसीं देखो इत्थे तुहाडे कोल की 0 सी x दा कोएफिशिएंट 0 सी तो तुहाडा ग्राफ किहदे पैरेलल बनया x एक्सिस दे ठीक है। उसी तरह मान लो मेरे कोल जे आ इक्वेशन होवे x = 2 फॉर एग्जांपल तो असीं इहनूं किवें लिखांगे 2 वेरिएबल दे विच बन गई तो तुसीं बेटा गैस कर सकदे हो इहदा ग्राफ किहदे पैरेलल बनेगा। हुण y दा कोएफिशिएंट 0 है तो इहदा जिहड़ा ग्राफ है y दे पैरेलल बनेगा। ये ध्यान रखना बेटे कि जिहड़ा कोएफिशिएंट जिहड़ा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उहदे पैरेलल की बन जाता है ग्राफ। यह एक याद रखने का एक मैथड है। तो y = 3 दे विच x नहीं है x कोएफिशिएंट x वेरिएबल नहीं है तो x दे पैरेलल बन गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा y नहीं है तो y ਦੇ पैरेलल बन गया। एक होर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ बेटा ਆ ਸੀ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ax + by + c = 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ 3y ਸੌਰੀ x + 3y = ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਜ ਆਫ ਰਮਨੀਕ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਏਜ ਆਫ ਹਰ ਮਦਰ by taking the age of Ramneek to be x and that of her mother to be y, which of the following represents this statement? देखो बेटा ध्यान नाल रखना है कि रमनीक दी एज नूं असीं की मन्निया है x, रमनीक दी एज नूं असीं x मन्निया है ते ओहदे मदर दी एज नूं बेटा असीं की मन्निया है y ते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्हें क्या रमनीक दी जिहड़ी एज है ओहदे मदर दी एज दा बेटा की है हाफ ठीक है बच्चे। तो हुण तुसीं 2 नूं बेटा आप उधर लैके जावांगे = y दैट इज 2x - y = 0 सो फोर्थ ऑप्शन इज करैक्ट। इस तरह के बेटा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये चलो तुसीं कर सकते हो x = -5 कैन बी रिटन एज लीनियर इक्वेशन किवें लिखांगे बेटा ये किहड़ा 0 अपने कोल y है नहीं अपने कोल तो असीं इहदी चूज करो इन्हां दे विच किहड़ा आंसर आएगा तुहाडे कोल। हाँ जी x = -5 है आप इत्थे लिख दिता +0 y = -5 तो इनू आप इधर भी लैके आ सकते हाँ तो किहड़ा आंसर आ रहा है तुहाडे कोल डी। उसी तरह बेटा अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन डज पॉइंट दिस लाइन। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जिवें तुहाडे कोल 1 ते 2 दिता हो तो उन्होंने पूछा कि इन्नियां सारियां नीचे समीकरण दित्तियां कि इहदे विचों किहदा सॉल्यूशन है। इसका करन लई बेटा तुसीं की करना हुंदा जिवें पहली इक्वेशन लैके इहदे विच पुट करके देखो 1 + 2 इत्थे देखो ये तुहाडे कोल = 3 आ गया तो इहदा मतलब इहदा सॉल्यूशन है ठीक है। उसी तरह हुण ये एक इंटरस्टिंग क्वेश्चन है जिहदा मैनूं आई होप कि तुसीं आंसर दे सकदे हो। हुण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान नाल देखना है द ग्राफ ऑफ y = a is a straight line parallel to x axis। मैं तुहानूं हुणे ये गल दसी सी कि जदों किसी समीकरण दे विच जेड़ा वेरिएबल इहदे विच हुण किहड़ा वेरिएबल इत्थे नहीं है अपने कोल प्रेजेंट नहीं है x नहीं है तो इहदा ग्राफ किहदे पैरेलल बनेगा x एक्सिस दे। तो बिल्कुल ठीक है।
उसी तरह ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इत्थे y वेरिएबल इत्थे प्रेजेंट नहीं है। उस तो बाद बेटा नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द x। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ y ਐਕਸਿਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਨਟੀਐਸਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 5-7 ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।